Good morning, students. In last session, we have started our unit 3, private, public and global enterprises. And last session, we have discussed about departmental undertaking in detail, their features, merits and demerits. As we know, there are three forms of public sector enterprises: departmental undertaking, statutory corporation and government company. Today we will discuss about statutory corporation, which is also called public corporation, in detail. What is statutory corporation? It is a corporation and it is a corporate body with a separate legal existence. इसकी अपनी एक separate legal existence होती है and set up under a special act of parliament. इसके में एक स्पेशल एक्ट पास करवाना पड़ता है, तब जाकर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इट इज़ आल्सो नोन एज पब्लिक कॉरपोरेशन. और इस एक्ट में इसके ऑब्जेक्टिव, पावर्स, फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर रखे होते हैं और इसके एम्प्लॉयज़ क्या क्या काम करेंगे और इसका गवर्नमेंट के साथ क्या क्या रिलेशन होगा. तो दीज ऑल आर द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. इट इज़ अ कॉर्पोरेट एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. जैसे हमारी कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, वैसे इसकी अपनी कॉमन सील होती है. एंड विद द पावर ऑफ एक्वायर इट डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड सू द केस ऑफ द अदर members. RBI and ONGC are the example of statutory corporation. Now, where they are suitable, that enterprises where we require huge amount of capital investment, and that enterprises which run on a business line, जो कि एक business line में चलता है और public interest इसमें हम लेकर चलते हैं. तो there are some example of the statutory corporation: LIC, Indian Airlines Corporation; FCI, Food Corporation of India; National Thermal Power Corporation; ONGC, Air India and RBI. So these are the example of statutory corporation. Now features of statutory corporation. First is formation. There is a special act is passed in the parliament to constitute any statutory corporation. हमें अगर कोई भी statutory corporation अगर हमें बनाना है तो हमें एक special act पास करना पड़ता है. इसके लिए all the activities of these corporations are channelized and controlled by the provision of the special act. उस स्पेशल एक्ट में हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है ये सब कुछ उसमें मेंशन किया होगा और इस एक्ट में उसके ऑब्जेक्टिव्स, पावर और फंक्शंस भी डिफाइन होंगे. Second is separate legal existence. It have a separate legal entity, which means they can purchase assets in their own name, they can contract with other parties with their own name, and they can sue a case and can also be sued. वो किसी के खिलाफ अपने नाम से केस कर सकते हैं. Ownership. It is fully owned by the government. Government has the power to appropriate its profits and also has to bear the losses. ये fully controlled होता है, इसका ऑनर आपका गवर्नमेंट होता है. इकोनॉमिक डिपेंडेंस. ऐसे कॉर्पोरेशन जो आपके फॉर्म्ड होते हैं सच अ मैनर सो दैट दे मैनेज देयर ओन फंड्स टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस. ये अपने नाम से शेयर्स ही बेच सकते हैं. दिस ऑफन दीज पब्लिक कॉर्पोरेशन आर फाउंड सेल्फ सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. ये आपके इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं. एंड स्टाफिंग. बेसिकली आपके जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स एंड दे आर नॉट गवर्नड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. Some officers take from government and other are they can employed themselves. Financial autonomy. Statutory corporation आपकी independent होती है financial structure में. It has authority to use its revenue. ये अपने revenue को proper use कर सकते हैं and it can also borrow money from the government or public with the behalf of their shares. तो it is not subject to budgetary, accounting and audit control भी इसमें government का complete applicable नहीं होता. तो this is the features of statutory corporation. Next is merits of statutory corporation. First is autonomy in operations. Autonomy means they frame their own policies and procedures within parts assigned to them by the act. ये अपने अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर बनाते हैं अपने कॉरपोरेशंस के लिए. एंड दिस एक्ट में रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्टर. बस उनको अपने एक जो मिनिस्टर्स हैं उनसे क्या लेनी पड़ती है, एक अप्रूवल लेनी पड़ती है. सेकंड इज क्विक डिसीजन. दिस कॉर्पोरेशन इज रिलेटिव फ्री फ्रॉम प्रोहिबिटरी रूल्स एप्लीकेबल टू एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स. सो इट कैन टेक क्विक डिसीजन एंड एक्शन. एंड थर्ड इज सर्विस मोटिव. जो बेसिक मोटिव होता है इनका टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करवाना. फोर्थ इज एफिशिएंट स्टाफ. दिस कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे रिगार्डिंग रेमरेशंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कुछ एम्प्लॉयज़ अपने आप रखते हैं एंड दे आल्सो गिवन देयर एम्प्लॉयज़ एनफ सैलरी
एंड अदर फैसिलिटीज़ एंड विच लीड्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट, जिससे कि वो अच्छी तरह काम करते हैं. फिफ्थ इज इकोनॉमी डेवलपमेंट. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपका वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड होती है. इट इज़ द पावर ऑफ गवर्नमेंट कंबाइंड विद इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं. तो दिस इज द मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. नाउ लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इनकम्प्लीट ऑपरेशन एटॉनमी. अभी मैंने आपको बताया कि एटॉनमी का मतलब कि दे कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट दे डज नॉट एन्जॉय कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन डे टू डे ऑपरेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इनके यहाँ पर इंटरफेरेंस होती है. रियलिटी में मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैनेजमेंट. तो इट रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ operations. Second is political interference. There is a political interference in the major decision. इनके प्रॉपर यहाँ पर क्या है, इंटरफेरेंस होती है पॉलिटिकल डिसीजंस की और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व. एंड थर्ड इज मोनोपोली. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मिस यूज द मोनोपोलिस्टिक पावर टू एक्सप्लॉइट इनएफिशिएंसी. कई बार अपने जहाँ पर मोनोपोली होता है इट मीन सिंगल सेलर, तो वो कई बार क्या करते हैं, अपने पावर का मिस यूज़ करते हैं. एंड फोर्थ इज नॉमिनेटेड बोर्ड. The directors of statutory corporation are appointed by the government. और इससे क्या होता है कि this reduce and freedom of the corporation in entering into contract and other decision. In case of any disagreement, the matter is referred to the government for final decisions. क्योंकि this for the delay actions, इसमें हमारे action delay होते हैं क्योंकि again rules regulations ये अपना बनाते हैं लेकिन इनको government से फिर भी approval लेनी पड़ती है. तो these are the limitations of statutory corporation. तो students, today we have discussed about statutory corporation, which is also called public corporation, and its features, merits and demerits. Thank you, students.